दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओपन सीक्रेट। In our present series of Indian personalities, icons, gods, gurus, friends, today we are I am going to speak on a little, guru lineage. Two, three people joined, one guru of another, and then from that try to bring up certain things out about Indian thought. Simple. I will talk about Ramakrishna, his guru, Totapuri. Totapuri's guru and Ramakrishna's main disciple, Vivekananda. And only that part of their lives which is when the guru is adorned or the disciple is दीक्षा उसको मिल जाती है ये आज का टॉपिक. आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस थिंग. प्लीज एंजॉय. मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स कीप ऑन आस्किंग मी, सर द्वैत के ऊपर बोलो, अद्वैत के ऊपर बोलो. उसका भी थोड़ा सा ब्रीफ देने की कोशिश करता हूँ. Friends, we all know Veda period is our earliest period. Vedas are the base of Indian thought. जितने भी पीरियड्स हुए वेदास के पीरियड के बाद हुए. तो वेदा पीरियड से पहले क्या था? प्लीज अंडरस्टैंड. बिफोर वेदास India was continuing since for many thousand years, thousands of years. Please know it. तब हमारे देश में तंत्र था. तंत्र is older than any other form of knowledge. सब विद्याओं से पहले हमारे यहाँ तंत्र था. Veda period can be, made equal with Advait. Okay, only one God, Brahma. After Veda, we started with Dvait, many gods, and then Bhakti, Puja, those forms. Now, this Advait is not even, it has to be understood. So, dualism is Dvait, believing in two, and Advait is non-dual. And before non-dual, this is period, Tantra period, which can be defined as oneness. That was the real period of oneness, real Advait, not two. They did not use not to. Not to came later. क्योंकि not to का meaning then there has to be one, or there has to be more than two also. That number is not there. Oneness. That was real Advait. The people in India lived a life which can be classified as a real Advait way of living. Their thoughts, their principles, their way of living, their mind, their psyche, their teachings, their panorama was real Advait. Please understand that. Now this has continued so many times in our mythological stories or our Puranic stories. The merging of Dvait and Advait happens. I will tell you this by way of Ramakrishna. Our times, only 150 years back, around 1840s, 1850s. Not very bad, not very long back. 1857 में तो पहली इंडिपेंडेंस बाहर हुई थी इंडिया में, युद्ध हुआ था. Means around that period. Okay. Now, हरियाणा में
दैट टाइम पंजाब। एक जाट परिवार का, गरीब परिवार का एक छोटा सा लड़का, अनपढ़, स्कूल कॉलेज कुछ नहीं गया हुआ, बच्चा ही था अभी, रोज गाय चराने जाता था। गाय, भेड़ें, ना, जानवर, और जंगलों में चला जाता था। दिस बॉय हैड a beautiful quality, unique quality of speaking to birds and animals. वो सबसे बातें कर सकता था, करता था बातें। अकेला था, अनपढ़ था, गांव वाला था, गरीब था, अकेला था, जानवरों से खूब बातें करता था। Means he was living a life of oneness in present times, one with the nature. ये अद्वैत का एक एग्जाम्पल मान लो। उस समय उनके उस जंगल में जहां वो आता था, एक फकीर आया, फकीर आया कि सेंट आया कि नागा बाबा आया, नोबडी नोज, बट आया। और आपको ये समझना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा, मानना होगा मन में कि कुछ तो निगाह होती है इन सेंट्स की। हमारे यहाँ भी बुजुर्गों की निगाह होती है। ही अंडरस्टूड, फेल्ट लव फॉर दिस चरवाहा, जाट चरवाहा। उसने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे और उसको दीक्षा दी, कुछ मंत्र दिए, तंत्र के बारे में कुछ बताया और कहा कि बच्चा इसको फॉलो करो, कल्याण होगा, दोज थिंग्स यू नो। और वो चला गया अपने। ये लोग घूमते रहते हैं। दिस बॉय ही ऑल्सो डेवलप्ड, प्रैक्टिस्ड एंड बिकेम तोतापुरी। His name nobody knows. Totapuri means, Tota is, one of the parrot who speaks a lot, and Puri is the place where ultimately he settled and his end happened there, near Jagannath Puri in jungles. This Totapuri lived 250 years. आज की बातें हैं, कहानियां नहीं है। Now this Totapuri जैसे जैसे ग्रो होता था, तो ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ऑफ ए तांत्रिक एंड अ टोटल अद्वैतवादी, वन विद नेचर, एंड ही हैज हिज ओन वेज ऑफ लिविंग एंड पूजा एंड मंत्र एंड एंजॉइंग, एंड ही यूज्ड टू बी, ही बिकेम ए वॉन्डरिंग मॉन्क। नागा बाबा बन गया था। कपड़े कुछ पहनते नहीं थे ये लोग। चलते 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 ये पहुंच गया, ये लोग घूमते तो रहते ही थे, दक्षिणेश्वर टेम्पल पहुंच गया कलकत्ता के पास, कलकत्ता में। मैं आपको रामकृष्ण की कहानी का एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि वो इसमें जोड़ नहीं सकते। यहाँ मैं गुरु और शिष्य की परंपरा के बारे में, द्वैत अद्वैतवाद जो इंडिया में बहुत जगह मर्ज हुआ है, अष्टावक्र की कहानी में भी मर्ज हुआ है ये चीज़, तो ये बताना चाह रहा हूँ आज की हमारे युग की बात। रामकृष्ण परमहंस थे, इसलिए उनकी कहानी बनाने में वक्त लग रहा है। परमहंस थे, उनकी जीवनी के बारे में कैसे कोई बताए, तो मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है, बनाऊंगा फिर भी। तोतापुरी दक्षिणेश्वर टेम्पल माँ काली का बड़ा टेम्पल है, 1000 एकड़ में। पहुंच गए, जाते थे फकीर लोग, नागा लोग, जाके अपने हर जगह रुकते थे, ये वहां भी रुक गए। वहां उन्होंने रामकृष्ण को देखा। अब रामकृष्ण में उन्होंने फिर वो चीज देखी, अटरली सिंपल, एकदम ओपन, ट्रांसपेरेंट, सिंपल मीन्स अटरली सिंपल, नॉलेजेबल, spiritually knowledgeable, but very simple.
उस सिंप्लिसिटी से अट्रैक्ट हुए, एंजॉय करते थे उनको देख करके, अपना बैठ रहते थे। इधर रामकृष्ण भी जब वो वहाँ उस काली मंदिर में पुजारी के तरह काम कर रहे थे इन दिनों, जब वो वहाँ से गुजरते थे तो इन नागा बाबा को देख करके वो भी बहुत अमेज होते थे, क्योंकि ये नागा बाबा में भी कुछ चीज़ तो थी। जब BHU में फ्रेंड्स हम पढ़ते थे तो वहाँ एक बिरला टेम्पल है, सब जानते होंगे, और उस टेम्पल में हम अक्सर शाम को जाके बैठ जाया करते थे। एक अंधा पता नहीं कहाँ से आता था और वो आकर के भजन गाता था, तो पंडित मंदिर का पंडित उसके पास आके जरूर बैठ जाया करता था और वो आकर के अपना एक भजन गा करके चला जाता था। ये मेरे कॉलेज के दिनों की बात है। मुझे तो उसके बिल्कुल पैरेलल लगता है कि तोतापुरी बैठ जाते थे, हम बैठे हुए रहते थे, नेचर जैसे स्वयं बैठ गई हो। पंडित जी रामकृष्ण वहाँ से अपनी पूजा करके जब गुजरते थे, उनको देख करके अट्रैक्ट होते थे। ये सिलसिला कुछ दिन चला, फिर बातें शुरू हो गई। तो रामकृष्ण को तोतापुरी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे कुछ और भी है, तुमको यहाँ रुकना नहीं है। रामकृष्ण माँ काली को माँ समझते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये द्वैत का एक चरम था, परमहंस थे। बताऊंगा जब रामकृष्ण की कहानी सुनाऊंगा। माँ काली वास एंड, जैसे द्वैतवादियों के लिए गॉड एंड होता है। मैंने पहले भी बताया है कि उनका जो ये भक्ति मार्ग है, इसमें भगवान के चरण कमलों में जगह मिलना ही एम है। लेकिन जो अद्वैतवादी है, ज्ञान से ऊपर, वेद से ऊपर वाले, दे आर वन विद नेचर। दिस इज ओनली ए माइलस्टोन फॉर देम। भक्ति मार्ग वाले गूढ़ सूक्ष्म बात है, मन का ही विस्तार है, शरीर से आत्मा तक, इवन परमात्मा तक। तोतापुरी को इतना प्यार आता था इस बच्चे से, उसमें प्रतिभा थी, पोटेंशियल था, पॉसिबिलिटी थी। हर कुड बी को शुड बी बनाना है। तुमको आगे निकलना है, मैं तुम्हें आगे का दीक्षा दूंगा, मंत्र दूंगा, बताऊंगा। रामकृष्ण, मैं अपनी माँ से पूछ के आऊंगा, मेरे लिए वही सब कुछ है। माँ मीन्स काली माता, भगवान। Ramakrishna asked Kali Ma, and Kali Ma allowed him. You should. इनको मैंने ही बुलाया है आपके लिए। Imagine, this is an incident, not a story. रामकृष्ण वापस आए, काली माँ ने बताया कि उन्होंने ही आपको बुलाया है। मैं तो तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। This aspect I will try to cover in short today itself, कि काली माँ ने ही बुलाया है, that aspect. Anyway, इसको कंटिन्यू करें तो फिर ठीक है। रात को आ जाना, रात को दीक्षा करवाई रामकृष्ण की और कहा कि ठीक है, अब तुम मंत्र पढ़ के कंसंट्रेट करो ऑन यूनिटी, ऑन नेचर, ऑन नथिंगनेस, ऑन स्पिरिट, ऑन आज्ञा चक्र में, यहाँ पे on the center of your eyebrows, in the forehead, concentrate on spirit. रामकृष्ण भी एक गजब के डिसाइपल थे, गजब के इंसान तो थे ही।
ही कंसंट्रेटेड एंड इमीडिएटली जब भी वो कुछ करना चाहते थे डीप इनटू मेडिटेशन, काली माँ वाज हिज एंड ऑफ द स्टोरी। काली माँ आ जाती थी लाइफ एंड उसके आगे उनको सोचना ही नहीं है। वेदवादी हैं, भक्ति मार्ग वाले लोग हैं। तो बोलता है कि ये जो आप बता रहे हो हमें समझ नहीं आ रहा है, इसमें तो मेरे को तो काली माँ ही आ जाती हैं और उसके बाद मुझे समझ नहीं आता है। उसके आगे पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, पूरा जगत है। ये केवल एक माइलस्टोन है। मुझे मालूम है, मेरी माँ ने ही मुझसे कहा है आप समझो, आप जाओ तो करो, जस्ट डू इट। ऐसे होते हैं ये नागा बाबा या वेदवादी। ट्रू वननेस विद नेचर। तुम्हें क्या लॉजिक है, करो, कंसंट्रेट करो। रामाकृष्ण ने दूसरी बार ट्राई किया, फिर काली माँ जी आ गई, माता आ गई। वो जीवन था उससे बीता हुआ, बस दी एंड है। भगवान से मिल लिए, माँ ने दर्शन दे दिया, माँ के साथ बैठ गए, बात आगे बढ़ती ही नहीं थी। और तोतापुरी बड़ी पर्सनैलिटी थी, कहते हैं 6.5 फुट का आदमी था। गुस्सा, मैं जा रहा हूं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं तेरे पास बहुत दिन रुक गया, कर ले इसको, बहुत आसान है, करना है। माँ काली अगर आए तो उनको काट के फेंक दे, तलवार से काट के फेंक दे। श्रद्धा देखिए आप। रामकृष्ण कहते हैं मैं कैसे काटूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कैसे काटूं। वो भी चाहता है आगे बढ़ना। उसकी माँ ने कहा है द्वैतवाद से अद्वैत में जाना जरूरी है। वो समझ रहा है रामकृष्ण, लेकिन क्या, कहां से तलवार लेके आऊं, वहीं से जहां से काली माँ को लेके आया है। और दिस इज वेरी 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 सटल, बहुत सूक्ष्म है ये। बस समझ में ना आए तब भी सुन भर लीजिए, समझ में आएगा। रामकृष्ण बैठ गए, नहीं हो रहा। तोतापुरी ने वहीं से एक कांच का टुकड़ा उठाया और बोला चल अब तू कोशिश कर, तलवार हाथ में लेके बैठ, जैसे ही काली माँ आएंगी मैं तेरे को इस कांच के टुकड़े से काट दूंगा और तू अपनी माँ को काट देना। फिर जब पूजा शुरू की, रामकृष्ण की तो हाव भाव बदल जाते थे। समझ गए कि माँ आने वाली है, इसका स्टॉपेज होने वाला है। तोतापुरी ने कांच के टुकड़े से रामकृष्ण के माथे पे यहां से यहां तक गहरा घाव कर दिया, खून निकलने लगा। और उसी समय रामकृष्ण ने काली माँ का टुकड़े कर दिए। द्वैत द्वैत आज अद्वैत में चला गया, वननेस में चला गया। रामकृष्ण को समाधि लग गई, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ समाधि, कैवल्य समाधि। बॉडी एंड माइंड गॉट सेपरेटेड। आत्मा की चिंता मत करो, शरीर बस रह सा गया। तोतापुरी उनको देख के समझ गए आज मेरा शिष्य को समाधि लग गई। कुटीर में दरवाजा बंद करके चले गए। 4 घंटे में वापस आए, बिल्कुल वैसे ही शांत समाधि में रामकृष्ण बैठे हुए थे। एक दिन बीत गया, बैठे रहे। तोतापुरी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया कि और कोई भी ना आए। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। तोतापुरी को भी थोड़ी घबराहट हुई।
यह है एक गुरु और शिष्य का मिलन। यह है द्वैत की चरम का और अद्वैत की चरम का एक मिलन। कहते हैं हरिओम करके वापस बुला सकते हैं, और तोतापुरी ने हरिओम हरिओम कान में कहो तो इंसान वापस आ सकता है। जोर जोर से कहना शुरू कर दिया। 4 दिन 5 दिन गांव वाले जमा होने लग पड़े थे। 6th डे रामकृष्ण वापस आए। आते ही तोतापुरी के पैर पकड़ लिए। तोतापुरी ने भी रामकृष्ण को अपने गले से लगा लिया। अचंभित, खुशी की इंतहा। 40 साल में जो तोतापुरी को मिला था, उनके शिष्य ने 40 मिनट के अंदर पा लिया था, इन 1 सिटिंग। ओके। तोतापुरी जो आज तक कहीं रुकते नहीं थे, रामकृष्ण के रिक्वेस्ट के ऊपर रुक गए। मुझे कुछ तो समय दो भगवान, कुछ तो मुझे इस राह चलना जब पड़ेगा, आपके साथ सीखना पड़ेगा। कहते हैं 6 महीने रुके दक्षिणेश्वर टेम्पल में, एक कुटीर में। तोतापुरी और रामकृष्ण की बातें होती थी। तोतापुरी जानते थे माँ के बारे में, रामकृष्ण जानते थे तोतापुरी के बारे में। तोतापुरी हमेशा कहते थे कि ये राम भगवान कुछ नहीं है, आप सिर्फ बस उसके ऊपर की सोचो। रामकृष्ण तब भी भक्ति, भजन, पूजा, राम भगवान, काली माँ की सेवा, मंदिर के सारे काम करते रहते थे। कुछ दिनों के बाद एक बार तोतापुरी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे अपनी शाम की पूजा के लिए। उस समय के लोग थे, कभी खुजली हो जाए, कभी कुछ विचार आ जाए, बहुत चिढ़ गए, गुस्सा हो गए। ये शरीर मुझे अपना काम नहीं करने दे रहा, मैं इसको आज ही त्याग कर देता हूँ। कहते हैं दक्षिणेश्वर मंदिर के सामने गंगा जी बहुत चौड़ी और बहुत गहरी है। चल पड़े, बस मैं अपना आज त्याग कर देता हूँ, इस शरीर का बहुत तंग करता है, मानता नहीं मेरी। तोतापुरी गंगा जी में स्वयं को, इस शरीर को फेंकने के लिए चले हैं, जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और गंगा जी उनके घुटनों के ऊपर हो ही नहीं रही, दूसरे छोर तक पहुंच गए। तब तोतापुरी ने सोचा ये क्या बात है। जब वहां से उन्होंने नज़ारा देखा गंगा जी का, मंदिरों का, दक्षिणेश्वर टेम्पल का और पूरे आजू बाजू का, तो उन्हें समझ में आया ये सब माँ की ही महिमा है। काली का ही रूप है, भगवान का ही रूप है सारा संसार। इधर रामकृष्ण को भी पता थी ये बात। जब अगली सुबह दोनों मिले तो रामकृष्ण ने बताया कि ये काली माँ ने आपको बताने के लिए सॉन्ग रचा था। रामकृष्ण जी कहते हैं कि जब राम, सीता माँ और लक्ष्मण जंगल में जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी बीच बीच में सीता जी के कारण राम को देख नहीं पाते थे। आगे आगे राम, बीच में सीता जी और पीछे लक्ष्मण, और लक्ष्मण सीता राम जी को देख नहीं पा रहे थे बिकॉज बीच में सीता जी चल रही हैं। लक्ष्मण को बहुत मुश्किल होती थी। एक भक्त, एक ब्रह्म रूप, बीच में सीता जी। सीता जी को इसका एहसास हुआ। अब वो चलते चलते बीच में से
थोड़ा थोड़ी देर के लिए हट जाया करती थी, एक कदम साइडवेज कर लिया करती थी। तो रामकृष्ण ने बताया कि ऐसा ही है माया का रूप। ब्रह्म को जानने के लिए जीव देखता रहे बीच बीच में, तो माया भी बीच में से हट जाती है या अपॉर्चुनिटी देती है। यही कल काली माँ ने आपके साथ किया है। तो ये सब एक ही है, वेद अद्वैत, माया ब्रह्म जीव, गेम चलती रहती है। तो ऐसे थे तोतापुरी और रामकृष्ण की कहानी। तोतापुरी तो चले गए 6 महीने के बाद। अभी भी उनका एक टेम्पल है पुरी के जंगलों में, 250 साल जिए। और दूर विवेकानंद जब छोटे थे वो तो एथीस्ट थे, एथीस्ट, भगवान को नहीं मानते थे। रामकृष्ण अगर रिवोल्यूशनरी थे तो विवेकानंद फायर थे। कहानी है कि एक बार रात को तैरते हुए गंगा जी में विवेकानंद पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर के पास पहुंच गए। तुम भगवान भगवान करते रहते हो, मुझे भगवान से अभी मिलाओ, जानते हो कौन है भगवान, कहाँ है भगवान। टैगोर साहब तो जब उन्होंने अपना रिएक्शन दिया तो विवेकानंद जी ने कहा आपके पास का नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। उसी वक्त फिर तैरते हुए गंगा जी में रामकृष्ण के यहाँ पहुंचे। कैन यू मेक मी एक्सपीरियंस अबाउट वट एवर यू कॉल गॉड। रामकृष्ण जी ने कहा तुम में हिम्मत है। जवाब, रात का समय है, कुटिया खोली तो सामने विवेकानंद खड़े हुए हैं, भीगे हुए। रामकृष्ण, तुम में हिम्मत है। हाँ, रामकृष्ण विवेकानंद के ऊपर चढ़ गए, छाती पे पैर रख दिया। ये है भगवान, ये है गॉड। फिर वही चीज जो मैं हमेशा बताता हूं, विवेकानंद का मन हट गया, सिर्फ शरीर और आत्मा रह गई। उस पल में विवेकानंद जी को भी एनलाइटनमेंट हुआ। दोस्तों, ये है 4 गुरु और शिष्यों की स्टोरी। फकीर nobody knows, तोतापुरी we know some, but रामकृष्ण मैं आई विल टेल यू। परमहंस कह देते हैं तब भी कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं मिलती कि मन फूल जाए कि परमहंस की कहानी पढ़ रहे हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड विवेकानंद मोस्ट ऑफ अस नो। ओके, तो पर्सन्स की, पर्सोनास की, इंडियन थॉट में जो पर्सनैलिटीज की, आइकॉन्स की बातों में मेरे हिसाब से ये तो एक बहुत ही ज़रूरी, इम्पोर्टेंट और जान लेने वाली कहानी है। इस प्रोसेस को, इस साधना को, इस तरीके को, इस जीने की राह को समझेंगे तो हमारा भी उत्थान होगा, देश का भी उत्थान होगा। My purpose is only to introduce you. Your purpose is to take it further. We are professionals. No? Thank you so much. दोस्तों, फिर वही बात, कहानी अच्छी लगी, शॉर्ट वीडियो ठीक लगा, कंटेंट्स पसंद आए, प्लीज़ लाइक कर देना, हमारी व्यूअरशिप बढ़ाने में मदद करना।